Dear student, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. As you all know, we are doing the chapter excretory products and their elimination. And in this chapter today we are going to discuss human excretory system. Human excretory system. So excretory system is the term used for a set of organ which are performing the function of excretion. तो अब इसमें हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो है उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन सी ऑर्गन कौन कौन सी पार्ट्स हैं और उनको हम एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल a pair of kidneys, kidneys होती हैं दो. Then it consists of a pair of ureters, and there is a single urinary bladder, and there is a urethra. So these are the basic components of the human excretory system. We will draw a outline of this all. So this is your kidney. These are the kidneys. From the kidneys arise cylinder tubes. Whitish tube-like structures known as ureters. So now here is a distensible sac-like structure. Now what do you mean by distensible? Distensible means एक ऐसा structure जो stretch हो सकता है. So this is sac-like structure which temporarily stores the urine formed over here, because we know the urine formation it takes place in kidneys and it is brought to urinary bladder by these ureters. And this is the urinary bladder. It temporarily stores urine, and this long tube is the urethra, and the urine finally goes out through this urethra. So this is the kidney. These are the ureters. This is the urinary bladder, and this is the urethra. And this urethra opens out by a pore called urethral orifice. I will not use the term pore, rather I will use the term opening, because pore is a tiny structure. So urethra opens to outside by urethral orifice. So these are the basic components of the human excretory system. Now we will take all parts one by one. So first we will talk about the size of the kidneys. So kidney जो हमारे पास organ है ये, its size is about, it is 10 to 12 centimeter long, 5 to 7 centimeter wide, and 2 to 3 centimeter thick. Now talking about the shape. So shape of the kidney, it is bean shaped, and it is a dark red, slightly flattened organ. तो जैसे राजमा का दाना होता है उस तरह की इसकी शेप होती है, और कलर जो होता है डार्क रेड होता है. अब बात करते हैं इसकी वेट की. तो वेट जो है किडनी का वो वेरी करता है इन मेल्स एंड फीमेल्स. इन केस ऑफ मेल्स
the weight of kidney is around 120 to 170 gram, and in case of females it is lesser as compared to male, and it is 120 to 135 gram. So this is the weight, shape and size of the kidney. Now we will talk about the position of the kidney. So position, so kidney is placed in the lower back wall of abdominal cavity, lower back wall of abdominal cavity, below the diaphragm, तो हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स के नीचे जो है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। उसके नीचे जो कैविटी होती है जिसमें स्टमक, पेनक्रियाज वगैरह ये ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल जो होती है उस पे सिचुएटेड होती हैं किडनीज। बैक वॉल के साथ इस तरह से ये स्टमक की फ्रंट वॉल है, ये बैक वॉल है, तो यहाँ पर जो है किडनीज जो है वो अटैच्ड होती हैं। एंड जो आपके एक एग्जैक्ट जो लोकेशन जो इसकी कही जाती है, दैट इज बिटवीन 12th thoracic वर्टिब्रा। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो है 12th thoracic जो वर्टिब्रा होगा उसके बिल्कुल सामने जो है किडनीज होती है 12th thoracic एंड 1st to 3rd lumbar vertebrae. So this is the exact position of the kidneys 12th thoracic vertebra से लेकर के 1st to 3rd lumbar vertebra तक ये situated होती हैं। This question can be asked in NEET. And now the lowermost pair of ribs, it protects the kidneys. So kidneys are protected by the lowermost pair of रिब्स। हमारा जो रिब केज होता है उसमें जो सबसे नीचे जो रिब्स होती हैं दे प्रोटेक्ट द किडनी। एंड अगर हम बात करें इसके अटैचमेंट की तो हमारे पास जो किडनी है हम कहते हैं इट्स पोजीशन इज रेट्रोपेरिटोनियल, So retroperitoneal means they lie behind peritoneum. तो पेरिटोनियम क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स द abdominal cavity. तो जो हमारे पास ये पेरिटोनियम है इसकी बैक वॉल पर यहाँ पर जो है हमारे पास किडनीज अटैच्ड होती हैं। तो दैट पोजीशन दैट इज नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो मीन्स बैक एंड पेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। तो दे लाई बिहाइंड द पेरिटोनियम। बाकी पोजीशन जो है मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सो स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी, there is a right kidney and a left kidney. Now the position of these kidneys is slightly asymmetrical. जो हमारे पास right kidney होती है it is slightly pushed aside and left kidney इस तरह से होगी और right kidney जो है थोड़ा सा asymmetrical होगी क्योंकि right side वाली जो kidney है it is suppressed from above by the liver. तो इसलिए इनकी position कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास left और ये right। तो इनकी जो पोजीशन है दैट इज स्लाइटली एसिमेट्रिकल। तो स्ट्रक्चर में आउटर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम अभी देख भी रहे हैं बीन शेप स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक इस तरह से देख रहे हैं बीन शेप स्ट्रक्चर और एक कॉन्केविटी, एक कैविटी छोटी सी हम जो यहाँ पर देख रहे हैं हमें नजर आ रही है। दिस कैविटी, दिस पॉइंट इज नोन एज हाइलस। दिस इज द हाइलस। और ये जो हाइलस होता है ये पॉइंट है किडनी के अंदर रीनल वेन, रीनल आर्टरी
नर्व, ब्लड सप्लाई, सबकी एंट्री का जो पॉइंट है दैट इज हिलस। तो हिलस से जो है हमारे पास क्या क्या ओरिजिनेट होता है, रीनल वेन, दिस इज द एंट्री पॉइंट, रीनल आर्टरी, ब्लड सप्लाई जितनी भी है किडनी की वो कहां से जा रही है, इस पॉइंट से, हाइलस से। फिर नर्व सप्लाई, and it is also the point from where this renal pelvis originates. This broader part of the ureter is known as renal pelvis, and this cylinder tube is known as ureter. So renal pelvis also is here, renal pelvis. तो ये सारा जो हमारे पास इस पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हिलस। है क्या ये, एक कॉन्केविटी ऑन द सरफेस ऑफ किडनी। अब बात करते हैं इसके आउटर कोट्स की। सो किडनी एक बड़ा सा जो है हम एक शेप बना लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द हाइलस। तो सबसे पहले किडनी पे जो एक फर्म कैप्सूल होता है, सबसे पहले जो कवरिंग होती है किडनी के ऊपर, दैट इज अ फर्म कैप्सूल, इस तरह से। दिस फर्म कैप्सूल इट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, किडनी की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि किडनी के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोट्स हैं वो किस किस टाइप की हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड फर्म कैप्सूल, और ये फर्म कैप्सूल इट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट fibrous tissue. So this is the first layer. Second जो covering है हमारे पास, there is a layer of fat on the kidney, and this fatty deposition or layer is known as adipose capsule. This is the adipose capsule or fat layer. So ये fat layer it is meant for shock proof या कुशन लाइक लेयर होती है जो किडनी को शॉक से जो है वो बचाती है। तो दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर है ये सारी। तो पहला फॉर्म कैप्सूल, उसके बाद क्या है बाहर की तरफ, एडिपोज कैप्सूल और फैट लेयर विच फॉर्म्स अ शॉक प्रूफ कुशन, शॉक प्रूफ कुशन। इसके बाद एक और लेयर रहती है किडनी के बाहर, like this. This layer is known as the renal fascia. So this layer is the renal fascia. Renal fascia, this is also a fibrous layer composed of white fibers. टफ लेयर होती है व्हाइट लेयर से, जो व्हाइट फाइबर से जो स्ट्रक्चर बना होता है वो एक टफ लेयर होती है। तो फाइब्रस लेयर है, काम इसका क्या है, किडनी की प्रोटेक्शन करना। तो इसका और क्या काम है, इट फिक्सेस द किडनी टू द अब्डोमिनल वॉल। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो हमारे पास अब्डोमिनल कैविटी होती है, पेरिटोनियम होती है, उसके पीछे रेट्रोपेरिटोनियल, वहां पर किडनी जो है वो अटैच होती हैं। तो ये जो किडनी है ये अब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच्ड कैसे होती हैं, दे आर फिक्स्ड देयर विद हेल्प ऑफ दिस रीनल फेशिया। तो यहाँ पर ये किडनी जो है इस तरह से अटैच्ड होंगी विद हेल्प ऑफ दिस फाइब्रस लेयर और रीनल फेशिया। तो इसका काम क्या है, फिक्सेस द किडनी टू एब्डोमिनल वॉल। तो एब्डोमिनल वॉल के साथ फिक्स करने के लिए है रीनल फेशिया।
तो फर्स्ट हमारे पास आ गया फर्म कैप्सूल, दूसरा आ गया एडिपोज कैप्सूल और तीसरा आ गया रीनल फेशिया। तो दीज टुगेदर फॉर्म द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द किडनी। अब आ गया हमारे पास हाइलस। तो हाइलस में डायग्रामेटिकली जैसे आपको मैं इस तरह से बता देती हूं क्लियर करने के लिए। सो यहां पर देयर इज अ रीनल आर्टरी, there is a renal vein, रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी किडनी को, रीनल वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी, और उसी के साथ ही यहाँ पर एक थर्ड स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज द रीनल पेल्विस, और ये हमारे पास है यूरेटर। सो ये हमारे पास है हाइलस और these are the protective coats of the kidney. Now we will take up the internal structure of the kidney. So internal structure of the kidney. So internally we all know from our basic knowledge that kidney are composed of small filtration units known as nephrons. So kidney is composed of millions of nephrons. और nephrons क्या है? nephrons क्या है? These are the filtration units जहां पर filtration होता है, filtration units। तो अब हम देखेंगे कि किडनी में किस तरह से ये filtration units जो है वो अरेंज होते हैं और कैसी अपीयरेंस जो है ये अंदर बनाते हैं। So this is the kidney। So यहाँ पर फिर से फटाफट से ये बना लेते हैं इसके प्रोटेक्टिव कोट्स। So these are the protective coats, that is the firm capsule, this is the adipose capsule and this is the renal fascia। तो ये तो आ गया हमारे पास प्रोटेक्टिव कोट्स। अब यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो थोड़े से रीजन में जैसे वो थोड़ा सा ज्यादा कोइल्ड रहते हैं और आगे जो है वो थोड़े से स्ट्रेट रन करते हैं, उतने ज्यादा दैट मच कोइलिंग इज नॉट सीन एज मच इज सीन इन द प्रीवियस रीजन। सो यहाँ पर इनकी इस अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट हो जाता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इस तरह से एक बड़ा सा सी शेप जो है वो मैं बना लूंगी। So in this region the nephrons are very tightly coiled and appear dotted। अगर आप देखोगे तो ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं दिस इज एलएस ऑफ किडनी, एलएस ऑफ किडनी। तो एलएस ऑफ किडनी मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इस तरह से जब हमने इसको कट किया किडनी को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के थ्रू, तो हमें स्ट्रक्चर जो नजर आएगा इस तरह का डॉटेड एरिया नजर आएगा। दिस डॉटेड रीजन इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो रीनल कॉर्टेक्स है ये डॉटेड क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज द नेफ्रॉन्स हियर आर वेरी टाइटली कॉइल्ड, नेफ्रॉन्स आर मच कॉइल्ड। और उससे आगे जो है आप देखोगे उससे आगे वाले रीजन में दे रन ऑलमोस्ट स्ट्रेट, लूज पैकिंग में होते हैं। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, अपीयर एज कोनिकल मासेस So internally you will see the kidney is divided into pyramidal masses, conical masses like this। इस तरह के masses होते हैं। These are not nothing else, these are nephrons only। तो यहाँ पर जो है नेफ्रॉन जो डॉटेड अपीयर हो रहे थे ये यहाँ पे हमें इस तरह से नजर आते हैं like this। So इसलिए ये जो रीजन है it appears striated, धारीदार, it appears striated।
So these structure, these are known as renal pyramids, क्योंकि ट्रायंगुलर सी शेप जो है इनकी होती है, तो दैट्स वाई they are called renal pyramids. So in these renal pyramids, these appear striated. And what are these? These are called renal pyramids. Striated renal pyramids. तो ये जो पिरामिड है इनका जो ब्रॉडर पार्ट होता है इट इज टुवर्ड कॉर्टेक्स, और जो इनका ये पॉइंटेड पार्ट होता है दिस इज नोन एज रीनल पैपिला एंड इट ओपन्स टुवर्ड्स रीनल पेल्विस. अब यहां पर हम देखेंगे किस तरह से ये नेफ्रॉन्स जो है वो ज्वाइन करते हैं और स्टिल लार्जर डक्ट्स बनाते हैं, और धीरे धीरे वो किस तरह से जो हमारे पास रीनल पेल्विस में कल्मिनेट होते हैं, और वहां से किस तरह से यूरेटर के थ्रू जो यूरिन बाहर आता है. तो रीनल पेपिला जो होता है इट इज टुवर्ड्स द रीनल पेल्विस. सो यहां पर फर्दर क्या होगा, जो हमारे पास ये रीनल पिरामिड्स जो हमको देखने को मिल रहे हैं, दे ओपन अप बाय डक्ट्स. So I will show here by another color. So these are the small ducts where these nephrons are excreting their secretions. Now like this, 2 to 3 ducts join like this. So here these ducts, further open up into shorter ducts. These are known as, these collecting ducts here, these will open into these shorter ducts known as minor calyces. These ones, they are known as minor calyces. And now these minor calyces from this pyramid join to form still larger ducts known as major calyces, या इनको कैलिक्स भी बोलते हैं, मेजर कैलिसेस और कैलिक्स. नाउ दिस 2 to 3 मेजर कैलिक्स join to form still larger duct known as renal pelvis. So this is the internal structure of kidney. Now here one more thing, this cortex, it projects into inside these renal pyramids. इन renal pyramids के बीच में इस तरह से cortex जो है वो project करता है like this. The projection of the cortex inside these in between these renal pyramids is known as renal columns of Bertini. Renal columns of Bertini. So this was the internal structure of the kidney. First of all, protective coats. Thereafter, nephrons, much coiled renal cortex, striated in renal medulla or renal cortex. This is the renal medulla, and then from this renal pyramids arise smaller ducts known as minor calyces. Minor calyces fuse to form major calyces, and major calyces, 2 to 3 major calyces, fuse to form the renal pelvis, which in turn extends into the ureter.